हो गया मैम स्टार्ट। ओके सर। ओके मैम, थैंक यू, कंटिन्यू करो मैम। जिस तरीके से कि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी और डेफिनेशन के अंदर प्रैक्टिकल वर्क वाली Yes, students. So, give me some water to drink. I'm dying of thirst. So you haven't any water either. So Gafur जो था, he was very weak and tired. He was hungry and thirsty. Secondly, he was upset that he did not find any work. So उसको, और जब खाना नहीं मिला तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड गुस्से में वो अमीना को, अपनी डॉटर को बहुत कुछ बोल दिया उसने। ही सेड कि तुम्हें 3 बार खाना चाहिए और कुछ फर्क नहीं पड़ता whether your father eats or not. At least give me some water to drink. He asked for some water. Amina remained standing with bowed head as before, realizing that there was not even a drop of water in the house. He lost all self-control. Rushing at her, he slapped her face noisily. Wretched girl, what do you do all day? So many people die. Why don't you? Why don't you? The girl did not utter a word. She took the empty earthen pitcher and went out into the afternoon sun, quietly wiping her silent tears. अमीना फिर सर झुका करके खड़ी रही। दैट मीन्स कि घर में पानी भी नहीं था। और ये सोच करके ही गफूर को और ज्यादा गुस्सा आया। एंड ही स्लैप्ड द गर्ल। उसने उसको थप्पड़ लगा दिया। एंड ही सेड कि इतने सारे लोग मरते हैं, यू शुड ऑल्सो डाई। वो कुछ नहीं बोली की डॉटर, और चुपचाप खाली घड़ा उठा करके वो उस धूप में निकल गई, अपने आंसू पोंछते हुए। वाइपिंग मीन्स टू क्लियर आउट द टीयर्स। The moment she was out of sight, her father was overwhelmed with remorse. Remorse यानी जो पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, क्योंकि गफूर को पता था कि अमीना की कोई गलती नहीं थी और बिना वजह उसने अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपनी जो उसकी मेंटल स्टेट थी उस वजह से वो उस पर चिल्लाया था। एक्चुअली गुस्सा उसको अमीना पर नहीं बल्कि खुद पर और खुद की परिस्थितियों पर आ रहा था। तो जैसे ही वो गई तो he felt, he started repenting. He alone knew how he had brought up that motherless girl. He knew that this affectionate, beautiful, quiet daughter of his was not to blame. They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted. It was impossible to eat 3 times a day, nor was he aware of the reason for the absence of water. 2 of the 3 tanks in the village had all dried up. The little water that there was still in the private tank of Shibu Babu was not for the public. और अब वो सोचने लगा कि इस बिना माँ की बच्ची को किस तरह से उसने पाला है और उसकी कोई भी गलती नहीं थी। 3 बार खाना तो बहुत दूर की बात है, उनको 2 टाइम भी भरपेट खाने को नहीं मिलता था। और जो पानी घर में नहीं था उसका रीजन भी उसको पता था। गांव में कुल 3 टैंक थे जिसमें से 2 सूख चुके थे और जो तीसरा है वो प्राइवेट टैंक था शिबू बाबू का, यानी कि जमींदार का। एंड दैट वाज नॉट फॉर द पब्लिक, यानी कि गांव वाले उससे पानी नहीं भर सकते थे। A few holes had been dug at the bottom of other tanks, but there was such crowding and jostling for a little water that this chit of a girl could not even approach them. और बाकी जो 2 टैंक्स थे उनमें कुछ होल्स किए गए थे जिनमें से थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होता था। वहां पर इतनी भीड़, धक्का मुक्की, जॉस्लिंग मीन्स भीड़ में जो धक्का मुक्की होती है, तो थोड़े से पानी के लिए जिस तरह से भीड़ वहां लगती थी
तो ये छोटी सी बच्ची तो वहां पहुंच भी नहीं सकती। She stood for hours on, and after much begging, if somebody took pity on her, she returned home with little water. He knew all this. Perhaps there was no water today, or nobody had found time to take pity on her. Something of the sort must have happened, he thought, and his own eyes too filled with tears. और शायद आज भी ये वहां वो घंटों खड़ी रहती थी वहां पर, और कोई अगर इस पर दया करके इसको थोड़ा सा पानी दे देता था तो वो ले आती थी। ये सब उसको मालूम था गफूर को। आज हो सकता है या तो इसको पानी अवेलेबल ही ना हो, या फिर किसी ने इस पर दया नहीं की हो। पिटी मीन्स टू हैव मर्सी। इसी तरह का कुछ हुआ होगा, और ये सोच करके गफूर की आंखों में भी आंसू आ गए। Gafur, are you in? Somebody cried out in the yard. The landlord's messenger had arrived. Yes, I am in. Why? Answered Gafur bitterly. Master has sent for you. Come. I haven't had any food yet. I will come later, said Gafur. Such impudence seemed intolerable to the messenger. It's master's order to drag you to him and give you a good thrashing, he roared, calling the man ugly names. Gafur lost self-control for the second time. We are nobody's slave, he replied, returning similar compliments. We pay rent to live here. I will not go. और इतने में ही बाहर से किसी ने आवाज लगाई। वो जमींदार का मैसेंजर था जो उसको बुलाने आया था। मगर गफूर पहले से ही गुस्से से और अपनी जो कुछ उसने किया था, he slapped his daughter without any reason, तो वो पहले ही बहुत परेशान था। So he said that he is hungry, he will not come, he will come afterwards. और जो मैसेंजर था उसको लगा कि ये उसकी बहुत बड़ी इंसल्ट है, उसकी भी और जमींदार की भी, कि ये उसका ऑर्डर नहीं मान रहा है। So he started abusing him. उसने कहा मास्टर का ऑर्डर है कि तुम्हें खींच करके लाया जाए और वहां तुम्हें अच्छी तुम्हारी मतलब क्लास ली जाएगी, whatever it is. He roared, calling the man ugly names. वो उसको अब्यूज करने लगा। Then Gafur lost his self-control for the second time. दोबारा से वो अपने आप पर कंट्रोल खो बैठा और उसने कहा हम किसी के गुलाम नहीं है, हम यहाँ का किराया देते हैं, so I will not go. But in this world it is not only futile for the small to appeal to authority, it is dangerous as well. Futile यानी बेकार, useless. लेकिन आज की दुनिया में, इस दुनिया में जो गरीब हैं, जो स्मॉल हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको हक नहीं है कि वो अपनी आवाज उठा सकें या अपने अधिकार के लिए बोल सकें। ये ना सिर्फ बेकार होगा बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। Fortunately, the tiny voice seldom reaches big ears, or who knows what might happen. क्योंकि छोटे लोगों की आवाज, गरीब लोगों की आवाज अमीरों तक नहीं पहुंचती है। When Gafur returned home from the landlord's and quietly lay down, his face and eyes were swollen. The chief cause of so much suffering was Mahesh. When Gafur left that morning, Mahesh broke loose from his tether and entering the grounds of the landlord had eaten up flowers and upset the corn drying in the sun. When finally they tried to catch him, he had hurt the landlord's youngest daughter and had escaped. और जब वो वहां से वापस आया तो वो चुपचाप आकर लेट गया। उसकी आंखें, उसका चेहरा सूजा हुआ था। दैट मीन्स ही हैड गॉट अ गुड बीटिंग देयर। उसको मारा गया था और पीटा गया था। और इस सारे सफरिंग का कारण था महेश, क्योंकि गफूर जब सुबह उस दिन निकला तो महेश ने अपनी रस्सियां तोड़वा ली। टेडर मतलब अपनी रस्सी तोड़ा करके वो जमींदार के घर में घुस गया था। वहां पर उसने had eaten up the flowers और जो कॉर्न वहां सूखने के लिए रखा हुआ था उसको भी अपसेट कर दिया। और जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने जो जमींदार की छोटी बेटी थी
उसको हर्ट करके वहां से वो भाग गया. This was not the first time this has happened. This had happened, but Ghaffur was forgiven because he was poor. If he had come round and, as on other occasions, begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven. But instead, he had claimed that he paid rent, that he was not nobody's slave. This was too much for Shibu Babu, the zamindar, to swallow. Ghaffur had borne the beatings and torture without protest. और ये पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन कि महेश ने उसका नुकसान किया है, बट हर बार उसको माफ कर दिया जाता था ये सोच करके कि वो गरीब है. और वैसे भी जो जानवर कर रहा है उसमें गफूर की कोई गलती नहीं है. और इस बार भी अगर वो चुपचाप आकर के माफी मांग लेता जमींदार से, जैसे कि बाकी ओकेजन्स पर उसने किया था, तो शायद उसको माफ कर दिया जाता. लेकिन उसने अपने हक की आवाज उठा दी. उसने ये बोल दिया कि वो रेंट देता है और वो किसी का गुलाम नहीं है. तो इतना शिबू बाबू यानी कि जो जमींदार है उसके लिए ये हजम करना मुश्किल था, सहन करना मुश्किल था. और बात नहीं मानी गई, उसका ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ और एक छोटे आदमी ने उसके सामने आवाज उठाई है. तो इसलिए गफूर को बहुत टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया और उसने सब कुछ बिना किसी विरोध के सहन किया गफूर ने. At home too, he lay in a corner without a word. Hunger and thirst he had forgotten, but his heart was burning within him like the sun outside. He had kept no count of how time passed. और घर आने के बाद भी चुपचाप वो एक कोने में लेटा रहा. भूख प्यास भी वो भूल चुका था अब तक, लेकिन उसके दिल में, उसके मन में एक आग लग रही थी, जैसे कि बाहर सन से जो हीट निकल रही थी, ऐसी ही हीट ही वॉज फीलिंग इनसाइड हिम. क्योंकि गुस्सा, अपमान, भूख प्यास सब कुछ उसमें शामिल हो गया था. He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl. She was prostrate on the ground. और अपने ख्यालों की दुनिया में वो खोया हुआ था. अचानक से उसका ध्यान भंग हुआ जब उसने उस लड़की की चीख सुनी. उसने देखा कि अमीना गिरी हुई है. The pitcher which he had been carrying tumbled over and Mahesh was sucking up the water as it flowed on the earth. उसका जो घड़ा है वो नीचे गिरा हुआ है और महेश पानी पी रहा है. Ghaffur was completely out of his mind. Without waiting another moment, he seized his plough head he had left yesterday for repair and with both hands struck it violently on the bent head of Mahesh. Ghaffur, जो पहले ही बहुत बुरी मेंटल स्टेट में था, उसने अचानक से हल, जो खेत जोतने के लिए काम में आता है, उसका एक सिरा वो रखा हुआ था, उसको उठाया और पूरी ताकत के साथ महेश के झुके हुए सर पर उसको मार दिया. Once only Mahesh attempted to raise his head, but immediately his starving lean body staggering to the ground. महेश ने एक बार कोशिश की अपना सर उठाने की, लेकिन वो भी भूखा था, कमजोर हो चुका था. लीन मीन्स दुबला पतला और स्टैगरिंग मीन्स लड़खड़ाना. तो लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर गिर गया. A few drops of blood rolled down from his ears. His whole body shook once or twice, and then stretching the fore and hind legs as far as they would reach, Mahesh fell dead. What have you done, father? Our Mahesh is dead. Amina burst out weeping. और महेश के कान से खून निकलने लगा. एंड दैट बुल डाइड. और अमीना चिल्लाई कि ये तुमने क्या किया है? यू हैव किल्ड आवर महेश. Ghaffur did not move nor answer her.
He remained staring without blinking at a pair of motionless, beady black eyes. और गुस्से में कभी कभी इंसान अपना विवेक, अपनी समझदारी खो देता है और एक पल में ऐसा कुछ कर देता है जिसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। और उस वर्स्ट मेंटल स्टेट में उसने विदाउट एनी इंटेंशन वो महेश की मौत का कारण बन गया था। वही महेश जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। एंड नाउ ही वाज सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल खामोश वो बैठा हुआ था, डम्बस्टक। Before 2 hours were out, the tenors living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on a bamboo pole. Shuddering at the sight of the shining knives in their hands, Gafoor closed his eyes but did not speak. और 2 घंटे के बाद टेनर्स यानी कि जो ये चमड़ा बनाने का काम करते हैं वो लोग आए और महेश को उठाकर ले गए। उनके हाथों में चमकते हुए जो नाइफ थे, चाकू थे, उनको देख करके ही गफूर को बहुत सिहरन सी हुई एंड ही जस्ट closed his eyes. The neighbors informed him that the landlord had sent for Tarak Ratna to ask for advice. How would Gafoor pay for the penance which the killing of a sacred animal demanded? पड़ोसियों ने उसको बताया कि जमींदार ने तारक रत्ना को बुलाया है सलाह लेने के लिए कि गफूर को एक बैल की हत्या करने के जुर्म में क्या जुर्माना उसको देना पड़ेगा, किस तरह की पनिशमेंट उसको दी जानी चाहिए। गफूर made no reply to these remarks but remained sweating with his chin resting on his knees. Amina dear, come, let's go, said Gafoor, rousing his daughter at the dead of night. She had fallen asleep in the yard. Where, father? She asked, rubbing her eyes. To work at the jute mill at Pulver, said the father. The girl looked at him incredulously. Through all his misery, he had declined to go to Pulver. No religion, no respect, no privacy for women folk there. She had often heard him say. Hurry up, my child, we have a long way to go, said Gafoor. और गफूर चुपचाप बैठा रहा। आधी रात को उसने, रात जब काफी हो गई थी, तब उसने अपनी बेटी को उठाया और कहा कि हमें चलना है। एंड ही वाज रेडी टू गो टू वर्क एट द जूट मिल। फुलबर वहां से दूर एक कस्बा है, सिटी टाइप से, तो वहां पर वो जूट मिल में काम करने के लिए रेडी हो गया। और अमीना इस बात पर बहुत हैरान थी। इनक्रेडुलसली मीन्स अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, क्योंकि उसने देखा था कि चाहे जितनी भी तकलीफ हुई हो, मिजरी मीन्स दुख, ग्रीफ, लेकिन वो पुलबर जाने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर वो कहा करता था कि देयर इज नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और स्पेशली फॉर वुमेन को वो जगह सुटेबल नहीं है। एंड नाउ ही वाज रेडी टू गो टू दैट प्लेस. Amina was going to collect the drink bowl and her father's brass plate. Leave them alone, darling. They'll pay for the penance for Mahesh, said Gafoor. अमीना जब उनकी जो एकमात्र पोजेशंस थे, उनका जो मटका है और ब्रास प्लेट, तो वो सब ड्रिंक बाउल जिसमें वो लोग पानी पीते हैं और एक प्लेट, वो उठाने लगी। तो गफूर ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये महेश के पेनेंस के काम आएंगे। पेनेंस मीन्स जो हर्जाना, जुर्माना जो भी देना होता है कुछ गलती करने पर। In the dead of the night, Gafoor set out holding his daughter by the hand. He had nobody to call his own in the village. He had nothing to say to anybody. Crossing the yard when he reached the acacia, he stopped still and burst out crying loudly. Allah, he said, raising his face towards the black star-spangled sky, punish me as much as you like. Mahesh died with thirst on his lips.
Nobody left the tiniest bit of land for him to feed on. Pray never forgive those their guilt who never let him eat the grass nor drink the water you have given. और जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तो जैसे ही वो अकेशिया ट्री बबूल के पेड़ के पास पहुंचा जहाँ की महेश बंधा हुआ होता था, वहां आते ही वो जोर से रोने लगा और आसमान की तरफ देख करके प्रे करने लगा. ही वॉज एड्रेसिंग द गॉड अल्लाह कि मुझे चाहे जितनी आप पनिशमेंट दो, बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी दैट बिकॉज ऑफ हिम महेश डाइड. एंड सेकेंडली ही वॉज अनेबल टू फीड हिम. तो उसने कहा कि महेश प्यासा ही मर गया, भूखा प्यासा, और किसी ने भी उसके लिए लैंड जरा सा भी सोचा नहीं, जरा सी जमीन नहीं छोड़ी कि जहां वो अपने आप को फीड कर सके. एंड देन ही प्रेड टू गॉड कि उन लोगों का दोष कभी माफ मत करना, उन लोगों को कभी माफ मत करना जिन्होंने तुम्हारी दी हुई घास, तुम्हारा दिया हुआ पानी भी इसको नहीं लेने दिया. दैट मीन्स द ऑथर वांट्स टू से कि जो कुछ भी हमें मिलता है फॉर आवर नीड्स, दैट इज गिवन बाय गॉड, बाय नेचर. प्रकृति से ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है और प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है, और जो कुछ मिलता है उस पर सबका बराबर हक है. Not only the human beings but all the creatures created by God have the right to use the natural resources. लेकिन इन लोगों ने उन पर भी अपना हक जमा लिया है. As for the example, Shibu Babu even not allowed the villages to take water from his tank. तो उसको भी इन्होंने अपना पर्सनल पोजेशन बना लिया है, पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया है, जबकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर सभी टीचर्स का इक्वल राइट है, बराबर हक है, और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए बाय गॉड. सो दिस वाज अ ट्रेजिक स्टोरी. The writer wants to depict social and psychological aspects of human nature under stress. जब इंसान तनाव में होता है, बहुत वर्स कंडीशन में होता है, तो उसकी क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, और सोशल कंडीशन स्पेशली ऑफ द पुअर पीपल जो इन लैंडलॉर्ड, जमींदार, अमीर लोगों के जुर्म का शिकार होते हैं, ये सारी स्टोरी इसमें बताई गई है. Here finishes the lesson. In the next class, we'll discuss the word meanings and question answers. Is it clear? समझ में आ गया सबको? Have you understood? Any word meaning you want me to ask? Sorry, you want to ask? Okay then. Read the lesson again and learn the word meanings. In the next class, we'll discuss them. Okay then. Goodbye. Have a nice day.
Okay, bye all of you.
गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही मेरी?